Hello everyone, welcome to EduGrowth. This is Samya and today we are going to do class 12th economics, macroeconomics, chapter 2, some basic concepts of macroeconomics. Now this is the part 1 of the chapter. Now this is something about me. अगर आप contact करना चाहते हैं आप इस number पे contact कर सकते हैं. This is my email ID. You can follow me on Instagram as well. नीचे आपको Instagram and Telegram के direct links भी मिल जाएंगे description में. So do follow there also. Now the first topic is classification of goods. अब बहुत सारे goods हैं हमारे पास जो consume करते हैं, हम produce करते हैं economy में. So जो goods हैं वो broadly classified हैं दो तरह के goods में. First is final goods and intermediary goods. And second, consumption goods or consumer goods. And capital goods. So दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. Now firstly we'll discuss final goods. Final goods कौन से होते हैं? These are the goods which have crossed the boundary line of the production and are ready for use by final users. जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन की एंड जो फाइनल यूजर्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अब जो फाइनल गुड्स हैं ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. Now firstly we'll study about final consumer goods. अब ये कौन से goods होते हैं which are purchased by consumers for satisfaction of their wants. जो consumers purchase करते हैं अपनी needs को satisfy करने के लिए, अपनी wants को satisfy करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं consumer goods, final consumer goods. And the expenditure on the final consumer goods by households is called consumption expenditure. तो जितने भी households expenditure करते हैं final consumer goods पे उसे हम क्या कहते हैं? Consumption expenditure. एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ये फाइनल कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल है विच इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स. सेकेंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. These goods are purchased by producers and they are generally used as fixed assets in the process of production. तो ये कौन परचेज करता है? प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं एंड फर्दर प्रोडक्शन में इन गुड्स को यूज करते हैं, आगे प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को यूज करते हैं. And expenditure on final producer goods is called investment expenditure. जो expenditure किया जाता है final producer goods पे उसे हम क्या कहते हैं? Investment expenditure. और जो consumer goods पे किया जाता था उसे हम कहते हैं consumption expenditure. अब example of final producer goods is tractors and harvesters used by the farmers. Now what do we mean by saying that final goods have crossed the boundary line? इसका मतलब है कि जो goods हैं they are out of the process of production. अब जो production है वो हो चुकी है, अब further production process में जो goods हैं वो नहीं होंगे, या फिर process of value addition, इसमें और value add नहीं होगी. अब इसे हम example से समझेंगे. If a retailer purchases a shirt for 900 rupees from wholesale, so उसको आगे further value add नहीं करनी है of stitching, ironing, packaging, ये सब नहीं करना है. अब retailer directly 900 की शर्ट किसको सेल करेगा? कस्टमर को. If he sells customer for rupees 1000, तो कितनी वैल्यू ऐड करी रिटेलर ने? 100 रुपीज. सो वैल्यू एडिशन यहां पे कितना हो गया? 100 रुपीज. दैट इज 1000 माइनस 900. सो ये है फाइनल स्टेज वैल्यू एडिशन की. एक बार अगर शर्ट कंज्यूमर के पास चली जाती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड. सो शर्ट वर्थ रुपीज 1000 is counted as final good.
इसको हम फाइनल गुड कंसिडर करें। जब इसमें और फर्दर वैल्यू ऐड नहीं होनी है, जितनी वैल्यू एडिशन है हो चुकी है, तो कस्टमर के पास जब शर्ट आएगी इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड। नाउ व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? दीज आर द गुड्स व्हिच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं निकल पाए गुड्स, जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर गुड्स हैं, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। अभी फाइनल वैल्यू नहीं आई है और वैल्यू ऐड करनी है, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, बिकॉज वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। थर्ड, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय फाइनल यूजर्स। जो फाइनल यूजर्स अभी यूज नहीं कर सकते, ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। नाउ जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, these are purchased by one firm from another firm. कौन कौन से? रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर रीसेल। तो जो एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है गुड्स फ्रॉम द सेकेंड फर्म एज रॉ मटेरियल या फिर उसको रीसेल करने के लिए, इन गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ एग्जांपल्स क्या होंगे इंटरमीडिएट गुड्स के? शर्ट परचेज्ड बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर एक फर्म ने दूसरी फर्म से परचेज की हैं शर्ट्स रीसेल के लिए, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड। एंड वुड परचेज्ड बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर्स इज एन इंटरमीडिएट गुड। क्यों है ये इंटरमीडिएट गुड? बिकॉज वुड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। एज रॉ मटेरियल यूज होगा वुड, तो कोई भी गुड जो रीसेल के पर्पज से या एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड ट्रीट करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स की वैल्यू अपने आप बन जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। अगर एक कारपेंटर वुड खरीदे 15,000 का एंड उसकी टेबल्स एंड चेयर्स बना दे 25,000 रुपीज की, जो 15,000 की वैल्यू है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज। तो 15,000 इसमें इंक्लूडेड है, तब वैल्यू 25,000 हुई है फाइनल गुड की। सो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड की वैल्यू में ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती है। इसलिए जो इंटरमीडिएट गुड है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। सो इंटरमीडिएट good is not included in estimation of national product। जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं सो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड हम नहीं इंक्लूड करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि अगर हम वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, ये 15,000 अलग से इंक्लूड कर देंगे, सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल बी देयर। दो बार हम एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं विच इज नॉट करेक्ट। सो हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड को अलग से इंक्लूड नहीं करते। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड ओनली। नाउ द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब हो सकता है एक ही गुड फाइनल भी हो और इंटरमीडिएट हो, ये डिपेंड करता है उसको यूज कौन कर रहा है, एंड यूज कौन कर रहा है। सो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल शुगर। अगर शुगर हाउस होल्ड ने परचेज की है तो जो कंज्यूमर्स हैं वो फाइनल यूजर्स हैं, सो यहां पे ये फाइनल गुड की तरह ट्रीट होगा। एंड अगर प्रोड्यूसर ने परचेज किया फॉर प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, सो वहां पे ये इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट होगा, बिकॉज इट इज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसर। दूसरा एग्जाम्पल पेपर। अगर स्टूडेंट ने परचेज किया है सो फाइनल गुड, बिकॉज द स्टूडेंट इज द फाइनल यूजर। एंड अगर पब्लिशर ने परचेज किया है आगे बुक्स पब्लिश करने के लिए, सो इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट, कि वहां पे ये एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड। अगर प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल गुड को यूज कर रहा है या फॉर रीसेल यूज कर रहा है, तो उस गुड को कैसे ट्रीट करेंगे हम? एज इंटरमीडिएट गुड। बट अगर प्रोड्यूसर उसे एज फिक्स्ड एसेट ट्रीट कर रहा है, सो उसे हम ट्रीट करेंगे एज फाइनल गुड।
फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स, ये फाइनल गुड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं होते हैं. एंड ऑफ कोर्स जो हाउस होल्ड्स यूज करते हैं गुड्स को फॉर कंजम्पशन, ये तो एज फाइनल गुड्स ही होते हैं. अब हम गुड्स को ऐसे नाम नहीं दे सकते कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, हमें उसके यूज पे डिपेंड करता है, उसको यूज को देख के बताना है कि वो इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. मिल्क अगर हाउस होल्ड्स को जा रहा है तो वो फाइनल गुड है. बट अगर प्रोड्यूसर को मिल्क जा रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट्स, तो वहां पे वो इंटरमीडिएट गुड है. तो जहां पे फाइनल कंजम्पशन हो रही है हाउस होल्ड्स में, तो ये फाइनल गुड ट्रीट किया जाएगा. एंड अगर प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं मिल्क को फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो वहां पे ये इंटरमीडिएट गुड ट्रीट किया जाएगा. सो व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स, कि एंड यूज कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड बता पाते हैं. Now, what are the differences between intermediate good and final good? First difference, these goods remain within the boundary line. ये within the boundary line होते हैं intermediate goods, within the boundary line of production, and ये ready नहीं होते हैं final users के लिए, use करने के लिए. On the other hand, final good is outside the boundary line of production and they are ready to use for the final consumption. Then, second point, may be used as raw material. तो intermediate goods को raw material की तरह यूज किया जा सकता है and final goods को raw material की तरह यूज नहीं किया जा सकता. Third point, may be resold by the firms for profit. तो अगर रीसेल कर रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि उसको इंटरमीडिएट गुड कंसिडर करते हैं, तो रीसेल वाले गुड्स भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं. बट फाइनल गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय फर्म्स फॉर प्रॉफिट. देन नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स में भी वैल्यू ऐड करनी है, फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं करनी होती है. वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. Next point, expenditure on these goods is called intermediate consumption or intermediate cost. जितना भी expenditure करते हैं हम intermediate goods पे, उसको हम बोलते हैं intermediate consumption या intermediate cost. On the other hand, final good पे जो expenditure करते हैं उसको बोलते हैं हम final expenditure. Last point, these goods are not included in estimation of national product or national income. ये include नहीं होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, क्योंकि problem of double counting हो जाएगी. दो बार गुड्स काउंट नहीं करने होते हैं. Then, on the other hand, final goods, these goods are included in estimation of national product or national income. Now, what are consumption goods or consumer goods? These are the goods which are directly used for the satisfaction of human wants. तो directly use किए जाते हैं human wants को satisfy करने के लिए, जैसे आइसक्रीम and milk used by household. So ये consumer goods हैं, यहाँ पर consumption goods हैं. Now the consumption goods or consumer goods are further divided into four categories. First is durable consumption goods. Second is semi-durable goods. Third is non-durable goods. And fourth is non-material goods or services. अब इसे एक एक करके समझते हैं. Now first is durable consumption goods. ये वो गुड्स होते हैं जो several years के लिए यूज किए जाते हैं और बहुत हाई वैल्यू के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीवी, स्कूटर, रेडियो, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा. तो ये सारे गुड्स जो बहुत ईयर्स के लिए यूज किए जाते हैं एंड जिनकी वैल्यू कंपैरेटिवली हाई होती है, उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स. सेकेंड, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स. ये वो गुड्स हैं विच आर यूज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर. तो एक साल के लिए या थोड़ा ज्यादा जो गुड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स. और इसका एग्जाम्पल है क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी एटसेट्रा. तो ये हो जाएंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स. थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स. ये वो गुड्स हैं जो एक ही बार यूज होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, डोमेस्टिक एलपीजी, पेट्रोल, ये सारे
सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स होते हैं, एक ही बार यूज किए जाते हैं, सिंगल एक्ट में यूज किए जाते हैं. फोर्थ इज सर्विसेज, दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. तो ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, domestic servant, etc. तो ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. नाउ व्हाट आर कैपिटल गुड्स? दीज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी. दोज गुड्स ईदर यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक और एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक. या तो रिप्लेस करेंगे कैपिटल स्टॉक को, रिप्लेसमेंट में यूज होंगे, या कैपिटल स्टॉक के एडिशन में यूज होंगे. थर्ड, which are used in production for several years and are of high value. अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सालों से यूज हो रहे हैं और बहुत हाई वैल्यू के हैं. लेकिन अगर हम स्क्रूज की बात करें, नेल्स एंड स्क्रूज, ये भी यूज होते हैं प्रोडक्शन में, बट दे आर नॉट कैपिटल गुड्स क्योंकि दे आर ऑफ लो वैल्यू. तो हाई वैल्यू गुड्स जो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं उन्हें ही हम कैपिटल गुड ट्रीट करते हैं. एंड कैपिटल गुड ऑल्सो इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है ड्यू टू वेयर एंड टेयर. नाउ ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. अब हमने कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा. ये वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सेवरल ईयर्स के लिए और जो बहुत हाई वैल्यू के होते हैं. अब प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड those goods which are used as raw material, example wood, and goods used as fixed assets, example plant and machinery. अब जो wood है ये सिंगल यूज गुड है, ये हम बार बार नहीं यूज कर सकते. एक बार अगर हमने wood यूज कर दिया, it cannot be used further for production. So this is a non-durable good. On the other hand, जो fixed assets हैं, these are durable and इसको बार बार यूज कर सकते हैं हम for the production process. So, some goods which are producer goods are capital goods and all capital goods are producer goods. जितने भी capital goods हैं वो तो production में यूज कर ही सकते हैं, but जितने producer goods हैं वो हम as capital goods नहीं यूज कर सकते हैं. अब जो raw material है, जो wood है, ये हम नहीं यूज कर सकते हैं as a capital good, but जो fixed assets यूज करते हैं हम capital goods के अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं. Now, what are the differences between consumption goods and capital goods? जो consumption goods हैं, they lead to direct satisfaction of human wants. ये human wants को directly satisfy कर देते हैं. On the other hand, जो capital goods हैं, they do not lead to direct satisfaction of human wants. सेकेंड पॉइंट, जो एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन गुड्स का उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन गुड्स पे उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड नेक्स्ट पॉइंट, जितना भी एक्सपेंडिचर हम कैपिटल गुड्स पे करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. थर्ड पॉइंट, the goods are consumed by households when purchased. ये households consume करते हैं. And here the goods are not consumed by households. These are consumed by producers for further production. Now the last difference between consumption goods and capital goods, higher production of consumption goods lead to higher level of welfare of people. जितनी ज़्यादा production होगी consumption goods की उतना ही ज़्यादा welfare of people होगा and it raises their quality of life. उनकी quality of life भी raise हो जाएगी. On the other hand, capital goods की जितनी ज़्यादा higher production होगी it leads to higher production capacity.
इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है हमारी कैपेसिटी ज्यादा है प्रोड्यूस करने की इकोनॉमी में अगर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा है। इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। इसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। नाउ हेयर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पर्सनली टेक्स्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।